चलिए अब जरा यूएन चलते हैं, यूएन में क्या चल रहा है जरा वहाँ देखें। Thanks the High Commissioner for his update and welcomes the valuable work of his bureau. In India, we call on the government to take effective measures to protect minorities and uphold the rights to the freedom of expression and the freedom of the media. In Serbia, we are concerned by the recent violence during demonstrations. भारत को घेरने की तैयारी हो गई भैया। सूसी यानी स्विट्जरलैंड ने यूएन में, अभी यूएन का प्रेसिडेंट भी है स्विट्जरलैंड ने कहा भारत में माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं उनको अपहोल्ड किया जाए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो कर्व किया जा रहा है उसको रोका जाए। भारत में रोज़ प्रधानमंत्री को 4 लोग गाली देते वहाँ हैं, यहाँ रोज़ ब्राह्मणों को गाली दी जाती वहाँ। नैरेटिव अभी से सेट कर दिया गया भारत के लिए भी, शुरू हो गए सर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्व कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, फलान कर रहे हैं ठिकान कर रहे हैं, ताकि कल जो है कहने को मौका मिले कि हमने तो कहा था साहब, देखो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है साहब। Terror and tragedy. Mr. President, we would also like to respond to the surprising, shallow and ill-informed remarks made by Switzerland, a close friend and partner. As it holds the UNHRC presidency, it is all the more important for Switzerland to avoid wasting the Council's time with narratives that are blatantly false and do not do justice to the reality of India. Instead, it should focus on its own challenges such as racism, systematic discrimination and xenophobia. As the world's largest, most diverse and vibrant democracy, with a civilizational embrace of pluralism, India remains ready to help Switzerland address these concerns. I thank you. स्विट्जरलैंड को भारत ने पलट के मुंह तोड़ जवाब दे दिया, बोले तो पिछवाड़े पे हॉट क्रॉस बंस बना दिए, बोला कि भारत के बारे में बोलने का तो उनका अधिकार ही नहीं है, पहले अपने का रेसिज्म संभाल लें और सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन जो इनके यहाँ हो रहा है और जेनोफोबिया, बोले अगर उनको मदद चाहिए तो भारत उनकी मदद कर सकता है, क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, हम इनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, अगर आप चाहें तो हम आपके देश में आकर काम कर सकते हैं। जिन्होंने जवाब दिया उनका नाम है क्षितिज त्यागी, बताना ज़रूरी हो जाता नाम। चलिए आगे चलें, पाकिस्तान को लेकर भी धुआंधार भारत ने अपना जवाब दिया। Own leadership recently likened it once again to address provocations from a country whose own leadership recently likened it to a dump truck. Perhaps an inadvertently apt metaphor for a state that continues to deposit recycled falsehoods and stale propaganda before this distinguished council. Pakistan's systematic abuse of this forum, coupled with its routine manipulation of the OIC as its mouthpiece, has become a familiar pattern. Its pathological fixation on India appears to provide it with existential validation. Yet, we must respond, lest we forget. Lest we forget the carnage of Pahalgam, where Pakistan-sponsored terrorists turned a meadow of joy into a killing field in April this year. Lest we forget 9/11, as the world marks its anniversary tomorrow, even as we witness today the hypocrisy of those who sheltered its mastermind and glorified him as a martyr. Lest we forget Pulwama, Uri, Pathankot, Mumbai. The list is endless, Mr. President. Yet, Pakistan demonstrates the audacity to take the floor today, feigning moral outrage while continuing to finance and shelter the very networks that threaten global security. The international community recognizes this charade for what it is. The world will not forget. India will not forget. Our measured and proportionate response to the Pahalgam attack made that sufficiently clear. We need no lessons from a terror sponsor, no sermons from a persecutor of minorities, no advice from a state that has squandered its own credibility. Mr. President, India will continue to protect its citizens with unwavering resolve. We will defend our sovereignty without compromise. And we will continue to expose, time and again, the elaborate deception of a failed state whose survival depends upon trafficking in terror and tragedy. Mr. President, we would... पाकिस्तान को भी धनाधन जो है, पाकिस्तान को कह दिया डंप ट्रक है, पुराना रिसाइकिल्ड स्टिंकिंग फॉल्सहुड लेकर आता है, स्टेल प्रोपेगेंडा। तो भारत पहले जैसा भारत नहीं रहा, भारत तो बहुत बुरी तरह से जवाब देने लगा। अब भारत जवाब देने लगा है, अखरने लगा है, तो क्या करें? चाहे नेपाल हो चाहे लंदन हो, भारतीयों के लिए सब जगह मुश्किल है। Some images you may find distressing. They watch on as it appears that 3 men walk into this restaurant carrying petrol cans before pouring liquid on the floor and setting the place alight. The men are then captured on CCTV running from a plume of smoke. Moments later, a victim emerges onto the street, engulfed in flames, frantically trying to stop the fire from consuming them. Police and firefighters were called to the scene in Gants Hill at around 9 p.m. Crews rescued 5 people from inside the restaurant, while 9 others managed to escape the blaze before firefighters arrived. 5 people were taken to hospital, and police have confirmed 3 of them remain in life-threatening conditions. The attack... भारत के रेस्टोरेंट पे हमला हो गया, लोगों को जिंदा, भारतीयों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया, जिंदा जलाने का। 2-3 घंटे बाद तो एम्बुलेंस आई है, पुलिस आई है 3-4 घंटे बाद, और अभी पकड़ किसी को नहीं पाए। भारतीयों से इतनी नफरत, इतनी गजब की नफरत। कोई सा भी देश हो सर, सब जगह ये हाल है, सब जगह। No place in our communities. And that's why I condemn the recent hateful attacks on Hindu temples and mandirs all across the country. From the BAPS Sri Swaminarayan Mandir in Indiana to the Sri Radha Krishna Temple in Utah.
sacred spaces for faith communities have been targeted with acts of hate, vandalism, and desecration. And these are not isolated incidents. It's part of the rise in violence. It's a part of the rise in division in our country. It's not just happening to temples, it's happening to all places of worship. And every American deserves the right to safely practice their faith without fear. That's why we need to continue fighting for increased resources for security at places of worship like these temples. And we must be... तो साहब कुल मिलाकर जो है कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे जो अटैक उनको हम कंडेम कर रहे हैं। यूएस रिप्रेजेंटेटिव हैं सुहास कैपिटल हिल के। चलिए गुरुजी हम भी असम में काम शुरू कर देंगे सफाई का। अच्छा जी चलिए, तो भारतीयों को हर जगह मारा पीटा जा रहा है। उसके बाद जो है कनाडा रिजेक्ट्स 80% इंडियन स्टूडेंट वीज़ाज इन 2025, टॉप चॉइस स्टेटस फॉल्स। चलिए बहुत अच्छी बात, 80% वीज़ा जो है वो भारत के रिजेक्ट कर दिए। अच्छी बात है, कनाडा ने अच्छी बात है, वहाँ जाना भी कोई नहीं चाहता। मेरी बात नहीं मानते तो सुन लीजिए, देख लीजिए, है ना। Big disconnect. Are you like Chinese or Spanish? I'm Indian. Indian. Oh, Yeah. You like it down here? You like it down here? I want to go back, sir. They don't accept us here. You are nice, you are talking. They don't like to talk. Like immigrants? We are immigrants, but we are foreigner immigrant, you know. I am going to be citizen, but my heart is sad. Why? Because these people don't accept us. As in the president or like people like me? I don't know. You are, for example, you are my student. I was a school teacher, right? And what happened there? Need a student like us because you are a foreigner. Fuck off to your country. Why? Because we give them birth. Okay. Can you read your name is written here? Is it a pen? KMJP, I'm the only G. Just pray for us, okay, sir? Yes. I have a 2 daughters. My daughters are not going back. I'm stuck here. So you want to leave for yourself? I want to leave forever USA. Because if you are not happy somewhere and people are not accepting, but unfortunately I have a daughters, they are not leaving. They say we want to stay here, and wife also doesn't want to leave. So कहते हैं हम यहाँ रहना नहीं चाहते, सब यूएस में वापस जाना चाहते हैं। कोई हमें अपना नहीं समझता यहाँ पर। और क्या करें, मेरी अनफॉर्चुनेटली मेरी डॉटर्स हैं, वो वापस नहीं जाना चाहती, मेरी बीवी भी नहीं जाना चाहती। समस्या हिंदुओं में बीवी और औरतों की समस्या है, मरने को पड़े वहाँ वापस नहीं आएंगे। एवर जनरली टॉकिंग नॉट फॉरेन एट्रोसिटीज़, वो कुछ नहीं करते सर। तो ये स्थिति है। चलिए आगे चलें। Important initiatives immigration to you. Well, I can't get a job. They come to this country and they just get a job just like that. So when you apply, what do they say to you? Well, I've got a criminal record. Assault. Assault. Yeah. How long ago? ये ऑस्ट्रेलिया है, इनको इमिग्रेंट से बहुत नफरत है क्योंकि वो इनकी नौकरी खा जाते हैं। तो बोला आपको नौकरी क्यों नहीं मिली? बोले मेरे ऊपर क्रिमिनल चार्ज है असॉल्ट का, और इनको प्रॉब्लम है इमिग्रेंट से। लेकिन अगर भारत में जो है, मोदी जी का ट्वीट हैड एन एक्सीलेंट कन्वर्सेशन विद प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, रीअफर्म्ड आवर जॉइंट कमिटमेंट टू डीपन इंडिया इटली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब आप समझिए, पहले के जो लोग होते थे, जो प्रधानमंत्री वगैरह होते थे, ये सभी भारत के जो प्रधानमंत्री खासकर होते थे, सभी देशों को मलाई मार के रखते थे, सबको जो है मक्खन मार के रखते थे कि भाई तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो। क्यों रखते थे जानते हैं? इसीलिए कि भारत में अगर तख्ता पलट की स्थिति है तो हम वहाँ से बुलवा लेंगे मदद, समझे? तो उसी पैटर्न को इसको देखा जाएगा। हाँ, कहते हैं कि इंडिया EU ट्रेड एग्रीमेंट का जो है उसको प्रमोट करना है हमको, और कनेक्टिविटी IMEEC इनिशिएटिव से होगी। चलिए, तो जॉर्जिया मेलोनी से बात कर रहे हैं, ओके, और भी लोगों से बात कर रहे हैं। देखिए ज़रा, स्पोक विद आमिर ऑफ कतर शेख तमीम बिन हमद अल तहानी एंड एक्सप्रेस डीप कंसर्न एट द अटैक्स इन दोहा। दोहा में जो अटैक किया, किसने किया? इजराइल ने। उसको कहते हैं कि हम इसको कंडेम करते हैं, वायलेशन है सोवरेनिटी का, और हमारा ब्रदरली स्टेट है कतर, ब्रदरली स्टेट। हाँ, वी शुड सपोर्ट रेजोल्यूशन ऑफ इशूज थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। कतर को भी संभाल के चल रहे हैं, मुस्लिम देशों को भी संभाल कर चल रहे हैं। चलिए, लोग कह रहे थे कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील नहीं हो रही, बहुत नुकसान हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हमने क्या कहा? झुकने की जरूरत ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर कंटिन्यूइंग negotiations to address the trade barriers between our two nations. I look forward for speaking with my very good friend Prime Minister Modi in the upcoming weeks. I feel certain that there will be no difficulty in coming to successful conclusion of both of our great countries. तो जो लोग चिल्ला रहे थे ट्रंप ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, फलान कर देगा, ठिकान कर देगा, हमने कुछ नहीं कर पाएगा, ट्रंप का नुकसान हो जाएगा। वो लोग कहाँ हैं आज? हाँ, और क्यों ऐसा है समझते हैं, इस वीडियो से समझते हैं। Means run all of IT. If you ban them from IT, everything's gonna fucking break. Everything you can imagine will break. Now I know AI helps with a lot of shit. AI can cover a lot. I promise you, it cannot cover what Indians cover.
anyone who's worked in IT is familiar with the IT Indian juggernaut. In every large company, there's one Indian man taking the job of 50. And he's not taking the job of 50 Indians, he's taking the job of 50 Americans. Like, there's always this one IT killer brain that knows fucking everything, works 18 hours a day, solves every problem, knows all of your infrastructure, knows quite literally everything A to Z, never fucking complains, always helps everyone, always is happy, is on an H-1B visa, gets everything fucking done. And that company's greatest fear is losing him, because once they lose him, everything fucking breaks. You might not want to believe it, you might hate it, it's the fucking truth. I don't think it's going fucking anywhere. If you ever ban someone like that, your company goes tits up. It stops. Its production, I'm not saying it'll be dead for forever, but for at least 2 to 4 weeks, maybe even longer. Because you cannot replace that guy with one person. You gotta replace it with a group of 10. And if you want to replace them with 10 and they're American, then they're taking even more money. The company's losing money, tits up. And it's not good for I understand it's good for American citizens, that they're getting high paid jobs that, yes, you can argue that they're qualified for it, but the truth is that the top tier Indian juggernauts are just better than them at it. They know more and they do work for less. Eventually they do get their visa or whatever. Eventually they do get paid 7 figures. It's not like they're going to work for like tiny amounts for forever. But bro, you need them. You might not think you do. You might hate the fact that you do, but you fucking need them. Indians in general are the hardest working people everywhere. I'm in Thailand and there's Indian restaurants, bro. Like, the Thai people kind of advertise their restaurants to the Indian people. There's 0 people in some of these restaurants. They're not even a little bit this way. Quite literally, their restaurant is empty. They're the equivalent of like the iShowed Speed streamer that has nobody watching and still streams every day. They're calling out to everyone on the street. Hi, sir, would you like to try Indian food? Again and again. And I see the same people because I'm walking the same routes every day. The same people. Nope, there's nobody in the store. They're out there every fucking day trying to bring anybody into their store. Like, they'll call me, one of them finally got me because I told them, like, look, I don't eat carbs, I don't eat sugar. And they had some kebabs in their store that had no carbs, no sugar. So I eventually went. It was a fire kebab. But bro, they work harder than fucking everyone. There's a reason they get hired. There's a reason every CEO is Indian. It's not a fucking mistake. It's literally not. Like, there's only so much you can throw hate at. At some point, you got to give people their flowers. अमेरिकन है, कहते हैं साहब आप सोचते हैं भारतीयों को भगा देंगे, आप नहीं भगा पाएंगे, क्योंकि एक भारतीय जो है वो 50 लोगों का काम करता है और 50 अमेरिकी लोगों का काम करता है और सब उसको जानते हैं, उसे सब आता है, वो सारी फिक्स कर देता है आपकी सारी प्रॉब्लम्स को। और कंपनियां खुद डरती हैं भारतीय जो है हमारे यहाँ से छोड़ के ना चला जाए, क्योंकि अगर उस आपने उसे निकाल भी दिया चला भी गया तो आपको 10 लोगों को हायर करना पड़ेगा कम से कम, और वो भी अमेरिकन को, जिनकी तनख्वाह 10 गुनी ज़्यादा होगी। ये सस्ते में काम करता है, दिन भर काम करता है, इसका नेचर भी बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा है। बोले भारतीय बहुत मेहनत कश हैं, बहुत मेहनत करते हैं और कभी कंप्लेंट नहीं करते हैं। इससे बड़ा तमगा भारतीयों को मिल नहीं सकता, सच्चाई तो यही है। इसके बावजूद भारतीयों को क्रेडिट नहीं मिलता कभी, है ना। तो कहते हैं भारतीयों को हटाना लगभग नामुमकिन है। चलो अच्छी बात है, धीरा दुरुस्त है। फिर क्या, तो ट्रम्प साहब तो कह रहे हैं डील हो जाएगी, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं इंडिया एंड द यूएस आर क्लोज फ्रेंड्स एंड नेचुरल पार्टनर्स, आई एम कॉन्फिडेंट दैट आवर ट्रेड नेगोशिएशन विल पे वे फॉर अनलॉकिंग द लिमिटलेस पोटेंशियल ऑफ इंडिया यूएस पार्टनरशिप. Our teams are working to conclude these discussions at the earliest. I am also looking forward to speak with President Trump. We will work together to a secure, brighter, more prosperous future for both of our people. अब सवाल ये है कि जैसा भी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि पहले जो होता था भारत के या जो भी प्रधानमंत्री होते थे आपस में दूसरे प्रधानमंत्रियों से राष्ट्रपतियों से बड़ा समझ में बैठा के चलते कहीं कोई नाराज़ ना हो जाए। क्या ये जो ट्रेड डील फाइनल होती है जो अभी बिल्कुल हॉल्ट पे हो गई थी, अचानक कैसे फाइनल होने लगी, तो क्या नेपाल का इफेक्ट हमारे ऊपर आने लगा? क्या हम नेपाल की वजह से हम कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्या उसमें? ये सवाल बड़े हैं। ऐसा होने की सरकार को डरा दिया गया हो कि देख लो नेपाल में क्या हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए और हम कॉन्फिडेंट है कि ऐसा होगा भी नहीं, है ना। पर काफ़ी हद तक ये हो भी सकता है कि 2 कदम पीछे ऐसा लगता है कई बार कि 2 कदम पीछे आ जाए, क्या बिगड़ रहा है, और अपन अपना काम करें। और ठीक भी है एक लिहाज से कि भारत में यदि कुछ उथल पुथल होती है इस कंडीशन में भी तो भारत तो खत्म ही हो जाएगा। तो अगर उसमें यदि थोड़ा बहुत यदि आपको 2 कदम पीछे आना भी पड़ रहा है तो मेरे ख्याल से आना चाहिए। तो मैंने इसीलिए बोला क्या भारत डर गया है, लोग बोल रहे भारत डर गया, इसको डरना नहीं बोलते, इसको स्मार्ट मूव बोलते हैं। हो सकता है स्मार्ट मूव हो, क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सारे देशों से बात हो रही है, चाहे इटली से हो चाहे फ्रांस से हो, सबसे बात हो रही है, यूरोपियन यूनियन से बात हो रही है। तो बातचीत सिर्फ बातचीत नहीं होगी, उस बातचीत में कहीं ना कहीं ये भी बात हो रही होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ रिजीम चेंज वाले लोग लगे हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा काम डाउन करना है ना। प्रेसिडेंट ट्रम्प से पूछा गया कि आपकी बात कब होगी, युद्ध कब खत्म होगा पुतिन से। Yeah, it'll happen. We have that one and we have Gaza going on. We want to get them both ended. So it's going to happen all will happen this week? I think so. I think this week or early next week. या तो इस हफ्ते या अगले हफ्ते बातचीत होगी पुतिन से और जो है ये मैटर जो है लड़ाई कैसे खत्म कराया जाएगा। ठीक है, अब उस बात पर भी चले जिसको सेना के मुंह से जो आ रही है। Sambhav phone, you must be aware that Sambhav phone is the one which was very critical in Op Sindoor. Because why? Because this was the phone which we are using in our command and communication. We are not using WhatsApp and others. But in one go only, a kind of a joint operational and intel picture was there with all the commanders based on having the same platform. कहते हैं संभव फ़ोन हमने इस्तेमाल किया और सभी ने संभव फ़ोन इस्तेमाल किया, बहुत आसान हो गया था हमारे लिए इसमें काम करना। एक ही प्लेटफॉर्म पे सब लोग थे, सारी चीज़ें जो है तुरंत शेयर हो जाती थी। भारत को अपना सभी चीज़ें अपनी बनानी ही होंगी, चाहे संभव हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम, सब आपको अपना बनाना होगा। चलिए, भारत के लिए चैलेंजेस कम नहीं, सब तरफ से चैलेंजेस है। यहाँ से भी चैलेंज आ रहे हैं
यहाँ पे भी गद्दी छोड़ नारे आने लगे भैया। मैं अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रही हूँ। हम सारी महिलाएं कर रही हैं क्योंकि उन्होंने जो कहा है बेटियों के लिए वो बहुत ही शर्मनाक है। वो एक कथावाचक है, उनको ये कहना बेटियों के नहीं लिखा, चुड़ैलों और अधेड़ों के लिए कहा है। जो चुड़ैलें और अधेड़ें खड़ी हैं ना, जिनको न पहनने का सहूर, ये मंगलसूत्र जैसा लटका कर आ गई गले में, कुछ ना माथे पे बिंदी है, न मांग में सिंदूर है। तुम जैसों के लिए तो कहा है, तुमको जिसको मिर्ची लग रही उन्हीं के लिए कहा है, सही कहा है। गंदी से गंदी कहिए, गंदी जाए रूठ, धीरे धीरे पूछिए कहाँ कहाँ हुआ तू लूट है। गजब हालत है, कमाल अंधेर है साहब। इन लोगों ने आकर जो है अनिरुद्ध आचार्य, देखिए कितना आसान है। ये लोग आए, इन्होंने अनिरुद्ध आचार्य के पुतले पर जूते मारे, ये किया वो किया, लेकिन आप इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। समस्या वहाँ है कि आपको पता ही नहीं कौन है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको निकल कर आना होगा, इनमें जूते देने होंगे, दैत दनादन इनके पुतले बनाकर, है ना, इनके पुतलों पर पेशाब करनी होगी, तब इन्हें समझ में आएगा इनकी औकात क्या है। चलिए आपको लेकर चलते हैं एक और जगह। कपिल मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, जरा सुने। मुद्दों के ऊपर थी एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बैठक है। लगभग कई सालों से दिल्ली में एनिमल वेलफेयर का काम ही नहीं हुआ है। एक साल के बाद तो ये बैठक हुई, उससे पहले कई साल तक कोई बैठक नहीं हुई, मंत्रियों की उपस्थिति नहीं होती थी पिछली सरकार में। और आगे सब चीज़ों का जायजा लिया गया है। जो आवश्यक फंड दिए जाने थे बोर्ड को, वो फंड हम लोगों ने पास किए और बोर्ड को दिए हैं। और उसके अलावा दिल्ली में सभी पशुओं से रिलेटेड जो भी समस्याएं आ रही थी, उसके लिए बोर्ड को हम लोगों ने कैपेसिटी दी है, काम करने की पावर दी है कि बोर्ड में काम करेगा। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एनिमल वेलफेयर कमेटी डीएम बनाएंगे, उसका भी आज यहाँ से नोटिफाई करने का निर्णय लिया गया है। तो ऐसे कई बड़े निर्णय लिए गए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कमेटियाँ बनेंगी। ओवरऑल पूरी दिल्ली का बोर्ड को हम लोगों ने फंड देकर एम्पावर किया है। इसके साथ साथ यूएनडीपी की तरफ से इसके साथ में दिल्ली में सभी जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको माइक्रोचिपिंग करने का, लगभग 2 साल में माइक्रोचिपिंग करने का, उसका भी एक प्रस्ताव है, जिसके ऊपर हम लोग एक्शन प्लान बना के टाइम बाउंड तरीके से काम करेंगे। दिल्ली में सभी जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको माइक्रोचिपिंग करने का, लगभग 10 लाख 2 साल में माइक्रोचिपिंग करने का, उसका भी एक प्रस्ताव है, जिसके ऊपर दिल्ली में 10 लाख जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके माइक्रोचिपिंग करेंगे, उन सभी के चिप लगाएंगे ताकि पता चले कौन सा कुत्ता कहाँ का है, क्या है, इसका मालिक कौन, खाना कौन खिलाता है, फलान ठिकान। रात को कोई आता उसने कहा था, जब गायों को, इतनी सारी गायों को, इतने सब पशुधन को ये टैग लगाए जा सकते हैं, तो कुत्तों को क्यों नहीं लगाए जा सकते? इनको भी सबको लगा देना चाहिए। अब सबको लगेंगे, क्लियर है? जैसा बताया था वैसा ही हो रहा है। माइक्रोचिपिंग लगेगी, उसमें जिसको कुत्ता अपना बताना बता देना, या बाद में मत कहना बताया नहीं था। चलिए, भारत में अच्छी बात है। आइए साहब देखें जरा, इतनी मेहनत से भिजा भिजा पहन के आई, बड़ी मेहनत से उसको बनाया था, मुसम्मल वाला, मुसम्मल ईमान का। योगी जी ने गोदी में लिया, घर वापसी करा दी तुरंत ही। नहीं भरोसा हो रहा, देख लो अभी, हैं? आ जाओ भैया, अन्नप्राशन हो गया, ले भैया। वो कितनी मेहनत से काट पीट के कुछ करने के मूड में होंगे, योगी जी ने सब गड़बड़ कर दिया। खैर, गोल मटोल सा बच्चा, अच्छी बात है। ये आई योगी जी के पास में और बोली कि मैं चाहती हूँ कि अन्नप्राशन आप ही करें इस बच्चे का। तो योगी जी ने इनकी बात मान ली। ऐसा ही राजा होना चाहिए, ठीक है ना? चलिए आगे चलें। नवीन जी कह रहे हैं नो फ्रीडम ऑफ टेस्ट ड्राइव, नो फ्री स्पीच। नहीं, कोई फ्री स्पीच नहीं भाई साहब, देश बहुत ख़राब हो गया। सब टेस्ट ड्राइव इन्होंने सब बंद कर दिए, क्या करें? पहले जैसा कुछ बचा ही नहीं है। www.nitinshukla.in पर आपको जाना, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन करके अपना पेमेंट कर दीजिएगा, नाम और नंबर साथ में भेजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाएगी। जो भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। तो मित्रों, ये था आज का